Good evening, all of you, those who are here as a student for our Marathi speaking classes or spoken Marathi classes. Many of you are veteran and belong to very good field of knowledge, doing a lot of contribution to the science and technology and national growth. But today we will be discussing something which is connected to the literature and major role in communication of so-called evolved species like human being. तो हम मराठी भाषा सीखेंगे। मराठी भाषा, उसकी हिस्ट्री, इसके बारे में हमने काफी डिटेल्ड में जानकारी ली है पहले लेक्चर में। उसके वीडियोस मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं। जब भी आपको फुर्सत हो आप उससे आपका जो रूबरू हो जाइए। Second lecture was about basic introduction of alphabets used in Marathi and which will be covered by Vaishali madam today. So today's total planning of lecture is something like this. I initiate lecture for 2-3 minutes. Then Vaishali madam takes the recap or revision of what has happened in the lecture 2. Then Varsha madam takes the further another 20-25 minutes. And then I will be covering the other related aspects of language and your reviews and feedbacks, which I have received on my personal WhatsApp number. And then Vaishali madam takes the charge for closing of the class. I may close the class, but she will be taking one very important aspect of language, which is related to the sentence and their direct translation to Marathi, Hindi, and English. So, just to initiate, let me tell you a very important thing. Learning language has got a lot of other aspects which are connected to our brain. It's not like a solving mathematical problem or giving analytical solution to some critical scientific problems. It's something different which is connected to the different part of psyche, mind, or subconscious part of our brain. So this need to be dealt in a different fashion. I'm not some person from literature, but as I'm happen to be from Maharashtra, being in Bombay and suburbs, I know my mother tongue Marathi. I know Hindi, I know English as it was part of my education, and then as being part of Cosmo Crowd in BRC, I have to learn it to communicate in a better fashion. So I understood that knowing language is not much connected to the technical competency; it is connected to the interest and sincerity. And so have I personally emphasized much on this particular two aspects during my first lecture, which was not connected to the communication skill in specific language, but it was related to the communication skill in itself. So this I will be doing in every lecture for 4 or 5 minutes. Today I will not take your much of time. I'll hand over baton to Vaishali madam. Those who are new, don't bother. We are going to run for 1 year every week 1 hour. So 52 weeks, so 1 year. So 1 year is sufficient if the students or candidate or aspirants or enthusiasts are enough sincere, interested and dedicated to the cause of learning language. ये मेरा अपना सोच है. Those who are not good in Hindi, please stop us anytime by putting message in chat box. We'll try to communicate in English only. But English, Hindi, I feel that most of the Indians understand. So making them understand and learn in Marathi will be easier if we communicate in both of these languages. Your valued suggestions are most welcome anytime by a proper methodology called putting it in the chat box. So thank you very much for allowing me to take your 2-3 minutes. Now Vaishali madam will take charge. Thank you, ma'am. Please continue. Thank you so much, sir. Good evening, all. Please let me know in the chat box, am I clearly audible to everyone? Yes, thank you so much. And you must have seen that some students are putting their attendance, they are writing their names. So this will be compulsory in every lecture that you have to put your name and location as your attendance. So I request everybody, whenever the recording starts, you have to put your name and location. Yes, thank you so much. So I hope जो नए लोग हैं आज, I welcome them all and I hope कि आपने जो पिछला वीडियो था वो हमारा देख लिया होगा. You must have gone through that video. So I'll just take a small recap of that previous lecture and then Varsha madam will continue. Okay, so we'll go to the
recap. See, these are today's topics. What we are going to learn today, I'll take small recap. Then Varsha madam will take writing Vyanjan, okay? And then I'll take some words and some sentences as sir said before. So, in previous lecture, we have learned about Marathi swar जैसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा। ओके, जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि जो हमारे इंग्लिश में जैसे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो वैसे ही हिंदी या मराठी में ये जो स्वर होते हैं उनसे ही आपको आगे आपके व्यंजन के साथ मिला के आप वर्ड्स तैयार कर सकते हो और उसी वर्ड को यूज करके आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो इट वॉज दैट। देन वर्षा मॅडम ने आपका क से ज्ञ तक, म्हणजे मराठीत आपण क ते ज्ञ पर्यंत, मराठीत अपन ज्ञ बोलते, ज्ञ नहीं बोलते, ठीक है। सो क से ज्ञ तक मैडम ने लिया था। मैडम ने लिया था, आपको वर्ड दिखाया, सॉरी लेटर दिखाया था, हर एक अल्फाबेट या व्यंजन, और उसको कैसे पढ़ना है ये बताया था। पिछली बार हम लोगों ने अ आ ई जो है आहा तक, अ से आहा तक लिखना कैसे ये सीखा था, अगर आपको याद हो। लेकिन क से ज्ञ तक कैसे लिखना है ये आज आपको मैडम बताएंगी। पिछली बार जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे लोगों को मराठी लिखना भी सीखना है, तो इसीलिए हम लोग ये जो राइटिंग है वो लेते रहेंगे। आपको घर पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो है आपको बार बार देखना है, एंड नॉट दिस ओनली, आपको गूगल पे या यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको राइटिंग कैसे करना है वो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट में आज मैडम आपको वो बता देंगी। तो I'll ask Varsha madam to continue. I'll switch off my screen. Varsha madam, I'll stop sharing. Please continue. Okay, thank you, madam. Hello, everyone. Today we are going to learn how to write the व्यंजन्स. Okay, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको व्यंजन्स पढ़ाए थे, तो आज हम लिख के देखेंगे कि उन्हें लिखना कैसे है। ओके, मैंने प्रोनाउंसिएशन करके आपको बताया था, इंग्लिश में उनका लिख के बताया था लेटर्स, और प्रोनाउंसिएशन सिखाया था। ओके, तो जस्ट वी विल गो थ्रू दैट. इज माय screen visible to everyone? If my screen is visible, just write S in the chat box. Okay, now we'll continue. Okay, see. In last session, we learn what are व्यंजन्स. ओके, आपण काय शिकलेलो, व्यंजन काय असतात ते शिकलेलो. क्या पढ़ा था हमने, व्यंजन. तो जस्ट वी विल गो थ्रू दैट. ओके, रफली आपण बघूया एकदा व्यंजन्स कोणकोणते असतात. कसे वाचायचे? क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह ळ क्ष ज्ञ. ओके, वी विल गो थ्रू दैट अगेन. सी, कैसे पढ़ना है? क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह ळ क्ष ज्ञ. ओके, अब सबको याद होगा कि हमने ये सब पढ़ा हुआ था. ओके, नाउ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज please take a pen and a paper and write along with me. Okay, now today we will going to learn how to write the व्यंजन्स. आज आपण काय शिकणार आहोत? व्यंजन कसे लिहायचे. ओके, क्या सीखना है हमें? व्यंजन कैसे लिखना है वो हमें सीखना है. So please keep your paper and pen ready and please try to write along with me. Okay.
See here I am using a app whiteboard for teaching you to write. Okay, see. पहला व्यंजन है क. ओके एवरीवन गॉट हाउ टू राइट क. देखिए फिर से देखिए. ओके क. क कमल. क से शुरू होने वाला हर एक वर्ड लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि हम क्या लिखे. ओके क कमल. इज एवरीवन राइटिंग? पता चला आपको कैसे क लिखना है? समझ में आया है आपको? प्लीज राइट yes in the chat box if you are writing. Yes, okay, thank you. See, तो क कमल. ओके क कमल. नेक्स्ट है ख. ख खजिना. हमने पढ़ा था ख खजिना. काय शिकलेलो आपण? ख खजिना. ख खजिना. ओके ख खजिना. बघा ख खजिना. To write the खजीना. ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग. ओके समझा है सबको ख कैसे लिखना है? ओके हुआ सबका लिखे. ख ख खजीना. आता आपल्याला बघायचं आहे थर्ड व्यंजन ग. ग गणपती. क्या लिखना है हमें? ग. ग देखिए मैडम पेपर and sorry sir I can't hear. हाँ या सी you have some network problem because आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है. तो मुझे लगता है सबको ओके ओके स्टूडेंट नॉर्मली कंप्लेन टाइप के नहीं होते. तो आप थोड़ा अच्छे नेटवर्क एरिया विल बी बेटर. तो जस्ट आप थोड़ा ओके. Is my voice clear now? इट्स क्वाइट क्लियर मैडम. Yes. Okay. थैंक यू. ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. देखिए आप हमने अभी क और ख लिखना सीखा. ओके तो यू ऑल आर राइटिंग अलोंग विथ मी. प्लीज पुट S in the chat box if you all are writing along with me. Yes, you got how to write k and kh. Okay, you got. Okay, see now we are here with g. Okay ग कसा लिहायचा आहे आपल्याला? ग ग गणपती. ओके ग गणपती. ग गणपति. ओके समझा है ग कैसे लिखना है? अभी क्या आएगा ग के बाद? क ख ग घ. क्या आएगा? घ. घ के लिए क्या पढ़ा था हमने? घ घरटे. ओके देखिए ऐसे घ लिखना है. घ घरटे या फिर घ घर. देखिए घ घरटे. ओके हो गया है सबका लिखे? क्या सीखा हमने अभी तक? क ख ग घ. अभी क ख ग घ के बाद क्या आएगा? न. ओके क ख ग घ न. तो देखिए न को, ये वाला न को कैसे लिखना है? ड लिखना है और यहाँ पे एक अनुस्वार देना है. जस्ट यू हैव टू राइट ड एंड कीप अ डॉट ओवर हियर. ओके ड
लिखना है और यहाँ पे एक अनुस्वार, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? न। न। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? एन ए न। ओके, न। न। ओके, इज दिस लाइन क्लियर टू यू? क ख ग घ ण जैसे हम पढ़ते हैं वो आपको कैसे लिखना है वो समझ में आया है? घरटे, घरटे इज नेस्ट। ओके, पंछी का नेस्ट होता है, पंछी का घर, उसे मराठी में घरटे कहते हैं। ओके, घरटे म्हणजे पक्ष्यांचा नेस्ट. हाउस ऑफ बर्ड इज कॉल्ड घरटे इन मराठी. ओके, ओके. अभी क ख ग घ न कैसे लिखना है समझा है आपको? देखिए, हम ये वाला लाइन फिर से लिखना सीखेंगे. ओके, एक बार हम फिर से रिकैप लेंगे. देखिए, क्या लिखा हमने? क कमल, ख खजीना, ग गणपति, घ घरटे और न क ख ग घ न. यस, इज दिस लाइन क्लियर टू यू? क ख ग घ न कैसे लिखना है समझा आपको? ओके, ओके, चलिए. तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा? च छ ज झ न. ओके, च छ ज झ न लिखना है अभी हमें. देखिए, कीप योर पेन एंड पेपर विथ यू. नाउ वी विल राइट च छ ज झ न. देखिए, तो पहला लेटर क्या सीखेंगे? पहला व्यंजन क्या सीखेंगे हम? सी एच ए च. ओके, च. च को कैसे पढ़ना है? सी एच ए च. च चम एच ए ट. ओके, आ गए आपको सबको लिखने? च. च को कैसे पढ़ना है? सी एच ए च. ओके, कैसे प्रोनाउंस करना है? सी एच ए च. देखिए, अभी क्या लिखना है? च के बाद आता है छ. छ नंतर काय येतो? छ. छ. छ छतरी. ओके, छ छतरी. छ. छ के बाद आता है छ. छ को ऐसे लिखना है, मराठी वाला छ छे निकालते हुए उसको आगे लेके मोड़ना है और लाइन देना है. ओके, छ. छ छतरी. ओके, देखिए, छ छतरी. इज एवरीवन राइटिंग अलोंग विथ मी? छ छ समझा है सबको कैसे लिखना है? एनीवन वांट एनी रिपीटेशन? ओके, च छ समझा है आप सबको. अब हम देखेंगे ज कैसे लिखना है. ज जहाज. ओके, जैसे क्या आता है? जहाज. हिंदी में जहाज या इंग्लिश में जिसे शिप कहा जाता है त्याला मराठीत आपण म्हणतो जहाज. ओके, जहाज. और ज को ऐसे लिखना है, जहाज. ओके, जहाज लिखा सबने? देखिए, अभी क्या लिखना है? झ. झबले बताया था मैंने आपको. झबले इज फ्रॉक, बच्चे की फ्रॉक. ओके, झबले मराठीमध्ये त्याला झबले म्हणतात. ओके, मैडम ने आपको सिखाया था ई कैसे लिखना है.
ओके, छोटी ई सिखाया था ना, वैसे ही पहले ई लिखना है और इसे लाइन ड्रॉ करनी है और उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ओके, झबले। इज एवरीवन राइटिंग? ओके, गॉट। झबले क्या सीखा आपने? हमने अभी च चमचा, छ छतरी, जहाज, झबले। और ये वाला यहाँ पे कौन सा ण आता है? ये। ओके, ण, इससे कोई शब्द चालू नहीं होता है, लेकिन व्यंजनों में इसे पाया जाता है। देखिए न, इसे कैसे लिखना है? ऐसे न। ओके, देखिए फिर अभी हमने क्या देखा? सेकंड लाइन कौन सी पढ़ी हमने? छ छ ज झ न। ओके, यू ऑल गॉट? सबने लिखा छ छ ज झ न? ओके, किसको कोई प्रॉब्लम हुआ लिखते वक्त? एनीवन वांट एनी रिपीटेशन ऑफ एनी लेटर? क ख ग घ न छ छ ज झ न। सबको आ गया लिखने? सब लोग लिख रहे हो मेरे साथ? इज एवरीवन राइटिंग विद मी? ओके, तो आपको क से न तक तो लिखना आ गया। क से क ख ग घ न छ छ ज झ न पर्यंत तुम्हाला लिखा आगे। अभी हम क्या पढ़ना है? आगे वाला लाइन, उसको कैसे लिखना है? ट ठ ड ढ न लिखना है हमें अभी। देखिए ट। ओके, ट तरबूज। ट क्या लिखना है हमें? ट। ओके, हमें लिखना है ट। ओके, हुआ सबका? लिख के ट। टपाल पेटी पढ़ा था हमने। ओके, अभी हमें लिखना है ठ। देखिए ठ को कैसे लिखना है? ट जैसे ही, लेकिन सिर्फ उसको ज्वाइंट करना है, पूरा गोल बनाना है। ठ ठसा। ठसा दैट इज स्टैम्प पढ़ा था हमने। ओके, ठ ठसा। ओके, ट टपाल पेटी और ठ ठसा सीखा हमने। अभी क्या लिखना है हमें? ड। ड डब्बा। डब्बा कंटेनर। ओके, जिसे हिंदी में डिब्बा कहा जाता है। ड डब्बा, उसे कैसे लिखना है? देखिए ड डब्बा। प्लीज राइट along with me so that you can understand how to write, and if you have any problem please keep ask it in a chat box. ड डब्बा। ओके, पता चला है सबको ड कैसे लिखना है? ट ठ ड, यहाँ तक हमने लिखा है। अभी हमें लिखना है ढ और न। ओके, ट ठ ड। ट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? टी ए। ठ को कैसे करना है? टी एच ए ठ। ड को डी ए ड और ढ को डी एच ए ढ। देखिए ये हुआ अपना ढ। ट के जैसे लिखना है, लेकिन ठ के लिए आपको क्या करना है? पूरा सर्कल निकालना है, लेकिन ढ के लिए आपको हाफ सर्कल निकालना है। देखिए ढ। ढ ढग, आकाश, क्लाउड्स। ओके, ढ। ओके, यू गॉट हाउ टू राइट ढ? ओके, चलिए अभी न। न से मैंने आपको बताया था कोई वर्ड चालू नहीं होता, लेकिन न क्या आता है? वर्ड के पीछे आता है। तो न बाण, बटन। ओके, एरो होता है ना, उसको बाण कहा जाता है। ओके, कैसे लिखना है न को? देखिए ओके, समझा है आपको? ट ठ ड ढ न पढ़ा हमने अभी। समझा है सबको ट ठ ड ढ न कैसे लिखना है?
ओके, टपाल पेटी इज पोस्ट बॉक्स। ओके, पोस्ट बॉक्स जिसमें हम लेटर डालते हैं उसको टपाल पेटी कहा जाता है मराठी में। ओके, एवरीवन गॉट हाउ टू राइट ट ठ ड ढ न? सी, अगेन वी विल रिवाइज इट। हमने अभी कौन सा लाइन पढ़ा? ट ठ ड ढ न। ओके, नाउ वी विल मूव टू त थ द ध न। ओके, अभी हमने क्या लिखना है? त थ द ध न। देखिए, ये त को ऐसे लिखा जाता है, त। ओके, त तवा, त तबला, त तलवार, दैट इज स्वॉर्ड। ओके, त को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ओके, लिख रहे हो सब लोग? देखिए, ये हुआ अपना त। त के बाद आता है थ। त नंतर काय? तो थ। थ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? THA, थ। थ थवा। पक्षियों का जो फ्लॉक होता है, आसमान में जो पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो उसे क्या मराठी में कहते हैं? थवा। ओके, जो पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ता है उसे मराठी में थवा कहा जाता है। थ थवा। ओके, पता चला सबको कैसे लिखना है? अभी आता है त थ द ध न, तो हमें अभी लिखना है द। द दरवाजा, दैट इज डोर। ओके, द दरवाजा, द दरवाजा। ओके, त थ द ध न, अभी आएगा ध। ध धनुष, धनुष। ध से धरण भी होता है, डैम कहा जाता है जिसे। ओके, धरण, डॅम। मराठीत डॅमला धरण म्हणतात। ध। के ध कैसे लिखना है समझा है आपको? लिखना है सबने मेरे साथ। ओके, अभी इसके बाद आएगा न। देखिए, न नळ। ओके, न नळ, न नळ। आप अगर लिखते वक्त वर्ड्स बोलोगे तो आपको जल्दी से लिखना आ जाएगा और याद रहेगा। ओके, न नळ। ओके, समझा है सबको? त थ द ध न समझा है सबको? सबने लिखा है? इज एवरीवन रोट त थ द ध न? ओके, एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? हमने क्या पढ़ा? क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न और त थ द ध न। ओके, अभी हम लिखने वाले हैं प फ ब भ म। ओके, क्या लिखना है हमें? प फ ब भ म। देखिए, प, प को ऐसे लिखना है, प पतंग। जो काइट मैंने आपको बताया था। ओके, पतंगों को क्या कहते हैं? काइट। काइट को मराठी में पतंग कहते हैं। ओके, प पतंग, प पतंग। ओके, प के बाद आता है फ। फ फल। देखिए कैसे लिखना है फ को? प लिखना है और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाना है। समझे? उसको ज्वाइन करके एक सेमी सर्कल बनाना है। फ, सॉरी,
फ से फल यानी फ्रूट्स। ओके, फ। अभी क्या लिखना है? ब बदक। ओके, डक, ब बदक। ब बदक। देखिए, एज आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर एंड राइटिंग विथ माई फिंगर, द एवरी लेटर मस्ट लुक डिफरेंट। ओके, मस्ट बी लुकिंग डिफरेंट, राइट? सब अलग अलग दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैं फिंगर से लिख रही हूँ। लेकिन एज यू हैव पेन और पेंसिल, प्लीज राइट इट प्रॉपरली। ओके, प्लीज ट्राई टू राइट इट प्रॉपरली। आपके पास पेन और पेंसिल होगा तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है। ओके, एज आई एम यूजिंग फिंगर, एवरी लेटर इज फ्लक्चुएटिंग। सी, अभी हमने क्या लिखना सीखा? ब से बदक। ओके, ब बदक। अभी लिखना है हमें ब को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? B A ब। तो भ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? BHA भ। भटजी। ओके, भटजी इज पूजा पाठ कराने वाला भटजी, प्रीस्ट। ओके, भ भटजी। लिखा सबने? भटजी। और उसके बाद आता है म मगर, क्रोकोडाइल जो हमने पढ़ा, मगर। ओके, मगर। ओके, लिखा सबने? तो क्या लिखा हमने अभी? कौन सा लाइन पढ़ा? प फ ब भ म। ओके, आ रहा है सबको लिखने? प फ ब भ म लिखा सबने? ओके, सी। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज य र ल व श। ओके, क्या लिखना है? य से यज्ञ, जिसे मराठी हिंदी में आप यज्ञ कहते हैं। ओके, यज्ञ। जो पूजा पाठ कराते वक्त फायर लगाया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। ओके, यज्ञ। ओके, अगर सबको लिखने, देखिए अभी क्या सीखना है? र से हमने पढ़ा था रस, र से जूस। ओके, रस, फळांचा रस। के जूस को क्या कहा जाता है मराठी में? कहा जाता है। जूस इज कॉल्ड एज रस इन मराठी। ओके, र रस। नाउ ल लसूण। ओके, say how to write L is written in Marathi as like this. ल लसूण। ओके, लसूण। अभी लिखना है वजन। ओके, वेट। वेट को मराठी में वजन कहा जाता है। व वजन, वजन। ओके, और उसके बाद आता है शाहमृग। जैसे मैंने पढ़ाया था, दो टाइप के होते हैं उसे। सॉरी, ये पहला वाला है, इसको कैसे पढ़ना है? शाहमृग, SH ए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। SH शाहमृग। ओके, समझा है सबको कैसे लिखना है? तो अभी कौन सा लाइन सीखा हमने? य र
ल व श. Okay, got? Is everyone understanding how to write? जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी सबको समझ में आ रहा है? और आई एम गोइंग वेरी फास्ट? Am I going very fast? Or you are comfortable with this speed? शाहमृग इज शतुरमुर्ग. शतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच पता है आपको? ऑस्ट्रिच को शाहमृग कहा जाता है. ओके, शतुरमुर्ग कहा जाता है उसको हिंदी में, और इंग्लिश में इट इज ऑस्ट्रिच. ओके. Yes, yes. As you are fine with my speed, then we will continue further. See, क्या पढ़ा हमने? य र ल व श. अभी इसके बाद क्या आता है? श स ह ळ क्ष ज्ञ. ओके, श स ह ळ क्ष ज्ञ. अभी मैंने बोला कि श 2 बार आता है, तो ये अभी हमने पढ़ा वो वाला श हो गया, और जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ये. इसे मराठी में क्या कहते हैं? पोटफोड्या श म्हणतात त्याला. ओके. फक्त समजण्यासाठी, सिर्फ समझने के लिए, उसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता, लेकिन समझने के लिए उसे पोटफोड्या श असं मराठीत म्हणतात. ओके, मराठी में उसे कहा जाता है. देखिए, श क्या करना है? प निकालना है और उसके बीच में एक लाइन देना है. देखिए, ओके. श. इस श से कौन सा शब्द चालू होता है? षटकोण. श षटकोण, दैट इज हेक्सागॉन. ओके, षटकोण. श षटकोण. ओके. नाउ ससा. रैबिट. ससा. ससा. ससा कैसे निकालना है? र लिखना है और उसको लाइन देके ज्वाइन करना है. ससा. ओके. आता ह लिहायचा आहे आपल्याला. बघा, ह. ह हत्ती. ओके, ह हत्ती. हाथी, एलिफेंट जिसे कहा जाता है. ह हत्ती. ओके, गॉट हाउ टू राइट ह? सॉरी, सी. Okay, you have to write like this. H. Okay, H हत्ती, that is elephant. अभी श स ह ळ. क्या सीखना है हमें? ळ. ळ को कैसे लिखना है? देखिए, हम क कैसे लिखते हैं? ऐसे. ओके, ळ को कैसे लिखना है? 2 सर्कल को ज्वाइन करना है. ओके. ळ. ळ बाळाचा. मतलब क्या? ळ से कोई भी शब्द या वर्ड शुरू नहीं होता है, इसलिए वो वर्ड के पीछे आता है. तो बाळ यानी बेबी. ओके, उसमें ळ आता है, तो ळ बाळ. ओके, समझा आपको हाउ टू राइट ळ? नाउ क्ष. क्ष क्षत्रिय. ओके, क्ष क्षत्रिय. सी, हाउ टू राइट क्ष? समझा है आपको कैसे क्ष लिखना है? ओके. नाउ लास्ट वन इज ज्ञ. ये हुआ अपना ज्ञ. ज्ञ ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर एक संत का नाम है, वो ज्ञ से शुरू होता है, इसलिए ज्ञ ज्ञानेश्वर. ओके, क्या पढ़ा हमने अभी? कौन सा लाइन सीखा? श षटकोण, स ससा, ह हत्ती, ळ बाळ, क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानेश्वर. ओके, यू ऑल गॉट? ओके, सबने लिखा है? सबने लिखा है? एवरीवन वाज राइटिंग अलोंग विथ मी? सबको अच्छे से लिखना आया है? ओके.
Now you have to practice this Vyanjan and how to write. And while writing, just pronounce them. Okay. Now I will just go through some words. Okay. We will learn some words how to read them by using these व्यंजन्स. Okay. ये व्यंजन्स यूज करके कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं वो हम अभी देखेंगे. Anyone has any doubt till here? Everyone got how to write the व्यंजन्स क टू ज्ञ? क ते ज्ञ कसं लिहायचं व्यंजन सगळ्यांना समजलेलं आहे का? ओके. सी, ये कुछ वर्ड्स है, ये वर्ड्स है जो हमको क्या बताते हैं कि व्यंजन का यूज करके वर्ड्स बनते हैं, वो हमें पढ़ना है. देखिए पहला वर्ड क्या है. सिंपली व्यंजन आपको अगर पढ़ना आता है तो आपको ये वर्ड पढ़ना आएंगे. देखिए अमर. अमर. अमर एक लड़के का नाम बताया गया है आपको. अभय. अभय भी एक नाम बताया गया है. ओके, कैसे पढ़ना है. अभय. बटन. देखिए ण ण पीछे आ रहा है. देखिए बटन, जो बटन होता है हमारे कपड़ों में, उसे बटन बटन कहा जाता है मराठी में. ओके. भजन के भजन कीर्तन वगैरह होता है. ओके. भजन. ये देखिए शरद. शरद. शरद एक ऋतु पाई जाती है. ओके, ऋतु होती है एक शरद, और एक लड़के का नाम भी होता है. सहल. सहल पढ़ना. अपना माइक ऑफ करते हुए आपको ये वर्ड्स पढ़ना भी है मेरे साथ. ओके, माइक ऑफ रखना है और ये वर्ड्स पढ़ना ट्राई करना है. सहल. सहल. ओके. सहल. सहल इज ट्रिप. नवस. ओके. नवस. नवस मन्नत. भगवान के पास जो मन्नत मांगते हैं उसे मराठी में नवस कहते हैं. फणस. फणस इज जैकफ्रूट. ओके. फणस जैकफ्रूट. फणस. ओके. आई एम शोइंग दिस स्लाइड टू यू. प्लीज ट्राई टू रीड these वर्ड्स. ये वर्ड्स रीड करना है और विदाउट पुटिंग ऑन योर माइक. ओके, माइक ऑन नहीं करना है और अपने आप से ये वर्ड पढ़ना ट्राई करना है. ओके, आई होप एवरीवन इज रीडिंग. Okay, Vaishali madam, my teaching is over. Now you can take the charge. Okay, madam, thank you so much. Sir, you want to say something in between? Yeah. Okay. Okay. So we had enough of learning, specifically writing those particular Vyanjans and Swar. And now I'll elaborate bit on the learning of language again. I know many of you are veterans. You know far better than me any literature, content of language, communication skill. But certain things need to be told because we have some youngsters also who age in the range of 7 years, 8 years. Though we have veterans in the range of plus 60, then let me tell you certain things which will help you to master any language. See, we all have passed through that infant to the adult age. Some have reached to that particular old age also. If you go back into your own history of learning language, then you must remember, or at least by this time you must have read somewhere in the Google, आपने पढ़ा होगा that kids, infants start babbling word around age of 6 months. Around 1 year or so, specifically in the age of 10 to 15 months, they start saying words like a kaka, mama, baba, okay, papa, something like that, which is simpler of type. And then in the age of 2 to 3 years, they start forming some sentences. Mala pani de, pani do, okay, dudu, something like that. So those formation of word when they start around 2 to 3 years, you have anytime given little thought that what may be the vocabulary count of that particular language which is called his mother tongue or the language which is spoken around his own ears and his mind. Normally mother tongue, उसके कितने शब्द उस बच्चे को पता हुए होते हैं,
and you'll be shocked to know it's a range of approximately 200, 500 to maximum 1000 words. 2 से 3 साल की उम्र में 203 साल के टोटल 3 into 365 करने के बाद उस बच्चे ने जो उसके कान पे गिरने के बाद अपने दिमाग में डाल दिया और फिक्स वर्ड्स का, और उससे वो बंदा सेंटेंस बनाने लगता है। तो इफ सेंटेंस बनाने बच्चा लग जाता है उस उम्र में, तो आप जब सब उसके बड़े हो और आपका अपना एक हिसाब होगा कि आप मराठी सीखना चाहते हो, देन व्हाट इज योर वोकेबलरी काउंट टिल डेट। मैंने ये पिछली बार भी बोला था, एंड आई हैव गिवन यू स्मॉल एक्सरसाइज कि आप अपने जानकार सारे शब्द जो मराठी में आप जानते हैं, वो अगर आप हिंदी भाषी के तो हिंदी में लिखिए। इंग्लिश से आपका थोड़ा ज्यादा संबंध है या तमिल है, तमिलियत है, तमिल से संबंध है, जो भी हो आप जानते हो मराठी वर्ड लिखेंगे, उसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद और आपकी मदर टंग वाला अनुवाद लिखेंगे। इस तरीके से आप लिस्टिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, हैव यू चेक्ड योर मराठी वोकेबलरी काउंट? और मुझे मालूम है आपका जवाब कि ये नो है, जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। दो वी स्टैंड हियर कि आप मेरे से कुछ लोग बड़े हो, ज्यादा जानकार हो, बट इफ आई एम गाइड हियर एंड यू हैव चोजन मी और एक्सेप्टेड मी टू बी गाइड, तो आपको मेरी कुछ गाइडलाइन सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेगी ही। और उनमें से एक है कि अगर आपने शुरुआत नहीं की है और ये शुरुआत और 1 साल नहीं होगी, तो हमारी 1 साल की जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत है, जो किसी को पे भी करना पड़ता है, तो वो यूजफुल नहीं जा रही। ओके, बोलते हैं ना उल्टे घड़े पे पानी डाल। नो मी वेरी वेल कि मुझे इस तरीके की बेतुकी मेहनत पसंद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं तो मैं रिटर्न में आउटपुट भी एक्सपेक्ट करता हूं, एंड दैट इज ऑब्वियस एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सेकंड पार्ट आते हैं कि भाई आपने ये अगर गलती से लिस्टिंग किया 2-4 वर्ड, 400 वर्ड, 500 वर्ड का, तो क्या आपने उसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया? मुझे मालूम है आपकी तरफ से जवाब यह है कि नहीं। तो ये नहीं मुझे नहीं चलेगा। ओके, तो भाई आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना। तीसरा भी सवाल वो ये है कि लास्ट टाइम मैंने गूगल ट्रांसलेटर का जिक्र किया था। जो बड़े लोग हैं उनको नहीं समझ में आता, इट्स ऑब्वियस, इट्स कॉल्ड जनरेशन गैप। टेक्नोलॉजी से उनका ज्यादा संबंध नहीं। यंगस्टर्स का ये प्रॉब्लम नहीं, यंगस्टर्स का एक प्रॉब्लम है आलस, जो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भाई आप आलसी है, इसका मैं मोदी जी या अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है, क्योंकि क्लास में एनरोल किया है और अगर आप सिस्टमेटिक एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे तो एक ही छोटी सी चीज होगी कि भाई क्लास बंद किया जाएगा आपके लिए, क्लास तो कंटिन्यू रहेगा ही। तो भाई आपको सेंटेंस यूज करना में आपके शब्दों को यूज करना था, उसको गूगल ट्रांसलेटर में पुटअप करना था, और पुटअप करने के बाद आप सही हो कि नहीं ये चेक करके हमको रिपोर्ट सबमिट करनी थी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई गलती भी करे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती से ही आदमी सुधरता है। बाय अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट यू गेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज गुरु फॉर एवरीथिंग। ये सब फिलोसॉफिकल बातें मुझे करने के लिए मजबूर मत कीजिए। तो हम ये जो 3 सवाल मैंने आपको पूछे, लिस्टिंग योर ओन वोकैबुलरी इन मराठी, putting it into your own mother tongue Hindi and English, using it into the sentence, checking it on the Google Translator which is free of cost available on internet, ये 3 काम जिन्होंने किए वो सिंसियर लोग हैं और इलिजिबल है क्लास अटेंड करने के लिए। जिन्होंने नहीं किए हैं, दे आर टेंडिंग टू द इनसिंसियरिटी विच इज अनएक्सेप्टेबल and is the must requirement of our class. Second part is we talked about that the eligibility criteria for our class is basically interest in language. अभी लैंग्वेज में इंटरेस्ट होगा तो आप 50 तरीके ढूंढ निकालेंगे जिससे आपको भाषा सुनने समझने में और बोलने में आसानी होगी। आपको वो भी आपके प्रयास, आपके अटेम्प्ट्स, योर अटेम्प्ट्स नीड टू बी पुट इनटू द ग्रुप फॉर एनकरेजिंग अदर्स एंड फॉलोइंग दोज मेथोडोलॉजी विच यू हैव इन्वेंटेड और एटलीस्ट यू हैव गॉन फॉर। ये आपको मैंने करते हुए पिछले 2 हफ्ते में नहीं देखा, तो थोड़ा बुरा लग रहा। तीसरी चीज थी टाइम डिसिप्लिन की, जो हमारे क्लास की रिक्वायरमेंट थी। 9:10 बाद अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मैं मुंबई से ट्रेवल करके घर आया, ऐसे तो खाना खाया और लेक्चर का ड्राफ्टिंग करके मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जिसे मराठी हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती है, तनख्वाह भी अच्छे से मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ और काम के लिए, और आपको सीखना है और आपको 9-10 जाते हैं, कोई 9:15 कोई 9:30 आ रहा है, या 100% अनएक्सेप्टेबल है। And in another few classes will not allow anybody to join after 9 p.m. This is not
request, this is warning, and what I say is what I mean. Okay, अभी आते हैं कुछ चीजों पे जो मैडम लेंगी, वैशाली मैडम, अगले 15 मिनट में। आपको मराठी भाषा को समझते वक्त, उसको मास्टर करते वक्त कुछ चीजें समझनी होंगी। वी हैव सम न्यू अल्फाबेट्स। ल, शायद न, न 2-3 बार आया, न भी आया, श भी 2-3 बार आया। इसके ऊपर मैंने, मेरे कलीग ने कुछ सवाल पूछा था, उसके ऊपर एक जवाब दिया था, और वो ग्रुप पे था। कुछ लोगों को इस सवाल और जवाब के ऊपर कुछ सवाल थे, तो उनको वो ग्रुप में पूछने चाहिए थे, क्योंकि ग्रुप इज ओपन फॉर डिस्कशन विच आर रिलेवेंट टू द लैंग्वेज लर्निंग। And if something relevant to language learning is discussed, every one of you is competent enough to put your opinion, suggestions, and remarks. And that is why we are there, irrespective कौन से डेसिग्नेशन पे रिटायर हुआ, कौन से लेवल पे काम कर रहा है, and who we all are. तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज जो मैडम आगे पढ़ाने वाली है, जैसे सपोज शी विल टेल यू मी का मतलब होता है मला, बट उसका मतलब माझे भी हो सकता है, मी भी हो सकता है। इफ आई से कि आई हैव डन दिस वर्क, तो मराठी में उसका मतलब होता है मी हे काम केले आहे। नाउ आई पुट इट टू द पैसिव वर्ड्स, दिस वर्क इज डन बाय मी, हे काम मी केलेले आहे। नाउ यहाँ पे अगर आपको मैडम ने मतलब बताया कि मी का मतलब होता है मला, तो दोनों जगह पे मैंने मी का मतलब आई की तरह इस्तेमाल किया, दैट इज मी, जो मराठी में है। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मुझे मालूम है आपको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, बट यही चीजें आपको आगे सीखनी है। तो जो पहले लेक्चर में मैंने इंट्रो दिया, दूसरे लेक्चर में मैडम ने स्वर और व्यंजन पढ़ाए, तीसरे लेक्चर में आज वर्षा मैडम ने आपको व्यंजन का राइटिंग सिखाया। दिस इज ओवर फॉर एवर। इसके बाद इसको रिपीट करना थोड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आपको ये वीडियोस देखने हैं, आपको यूट्यूब के रेफरेंसेस लेने हैं, गूगल ट्रांसलेटर देखना है, और आपको अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव करना है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मिंग की तरफ, वर्ड्स के समझने की तरफ। इस दरमियान मुझे कुछ याद आ रहा है जो मैं यहाँ पुटअप करना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, अगर वो पेस्ट हो रहा है तो। यस, आई रिसीव सम 3 questions फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट, कलीग एंड माई वेल गुड फ्रेंड। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकैबुलरी? मुझे नहीं लगता है कि उम्र की 15 साल क्रॉस किए हुए किसी भी आम आदमी को जो इंटरनेट के एरा में जी रहा है, उसका ये सवाल एक्सेप्टेबल है। आपको मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना है। आपका माँ बाप करता धरता सब कुछ गूगल है। इस चीज से दिन में अगर आप 10 शब्दों का मराठी से इंग्लिश, हिंदी और आपकी मदर टंग की तरफ ट्रांसलेशन करके इस्तेमाल करते हो, तो साल में आपने 3,500 शब्द सीख लिए। जबकि हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2,000 से 2,500 शब्दों के समझने की, रट्टा मारने की, बाय हार्ट करने के और इस्तेमाल। Second question he has put up: me watching Marathi movies, serials will improve my vocabulary. It is really wonderful understanding and suggestion. बट आजकल आप लोगों को नेटफ्लिक्स से और बाकी अमेजन प्राइम से फुर्सत नहीं है, एंड अनलकीली दे ऑल कम इन हिंदी, इंग्लिश। सो रियली स्पीकिंग, पुटिंग योर मराठी subtitle on or watching something worthwhile in Marathi, or at least trying to read some Marathi text, or at least using Google Translator is a good start to your Marathi language learning. How do I improve my grammar? You don't have to bother. This is not the time that you start thinking about Marathi grammar. आप सोचिए कि आप नर्सरी में दाखिल हुए हैं। जो देवनागरी स्क्रिप्ट को रेफर करने वाले हिंदी भाषिक है, they are lucky to get advantage of, they know the writing of Marathi, which is quite common to Hindi, which is Devanagari script. But रही बात all crowd in general, you have entered nursery, तो your age may be 60 plus or 70. नर्सरी में एंट्री करने के बाद 5-6 साल ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता, तो आपको ग्रामर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से मत लैंग्वेज सीखिए, उस तरीके से सीखिए जो आपको नर्सरी से लेके आपको 5 साल तक सिखाया गया। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दो आई एम एम्फसिसिंग टू मच ऑन गूगल ट्रांसलेटर। इफ आई पुट आई एट दाल ऑन गूगल, तो मराठी में वो लिखेगा मी डाळ खाल्ली, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। इफ आई पुट आई एट पायसम, इट विल शो मी दैट मी पायसम खाल्ले, मतलब मैंने पायसम खाया। इसी तरीके से आप शिरकुरमा भी डाल सकते हो, रबड़ी भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। बट बाई चांस यू पुट आई एट चिकन, तो वो बताएगा कि मैंने चिकन खाया। वो मैंने मुर्गी खाई कि कोमड़ी खाई कि मैंने कोमड़ी का चिकन मटन खाया, वो नहीं बताएगा। बिकॉज गूगल में जो भी फीड किया जाता है
वो वहां के लोकल एक्सपर्ट्स ने जो फीड किया उसी का एनालिसिस है, वो उसी का रिप्रेजेंटेशन। बाय चांस यू पुट दैट आई एट चिकन एंड राइस, तो वो आपको बताएगा की मी चिकन आणि तांदूळ खाल्ले। व्हाट इज तांदूळ? तांदूळ इज नथिंग बट जो आप मार्केट से चावल लेके आते हो वो तांदूळ है, जबकि वो पकने के बाद मराठी में उसको भात बोला जाता है। तो आपको मैंने बोल तो दिया कि आपको गूगल ट्रांसलेटर मदद करेगा, बट बच्चे को खड़ा होने में मदद करेगा। बच्चे के दौड़ के ओलंपिक या मैराथन जीतने में गूगल ट्रांसलेटर मदद नहीं करेगा। ये बीच का गैप प्रैक्टिस से आप खुद फुलफिल करने वाले हो। और मुझे ये ज्यादा बोलने का मौका मत दो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इंटरफेयरिंग ऑल दिस कॉन्वर्सेशन। आई accept my apologies and I request Vaishali madam to please continue. So we will meet and talk again in the next lecture. Now Vaishali madam will continue for 10 minutes and the next lecture will be on the next Tuesday. Thank you so much. Sorry for inconvenience. Bye bye. Thank you so much, sir. See, as I told you before, today we are going to start with some words. Okay? Am I audible clearly? Please type in the chat box. Let me know. Am I audible? Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. See, we will go step by step. There are many, or you can say huge words are there in Marathi. तो आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड्स सीखने हैं और उनको फिर उनके साथ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इनिशियल स्टेजेस में, जब तक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख नहीं जाते तब तक हम लोग ऐसे जाएंगे। क्या किया है देखिए मैंने, आई हैव टेकन द इंग्लिश वर्ड, देन उसका मराठी ट्रांसलेशन क्या होता है और उस मराठी ट्रांसलेशन को कैसे रीड करना है, हाउ टू रीड। ओके, तो जैसे पहला वर्ड लिया है मैंने आई। आय मतलब मैं, हिंदी में मैं बोलते हैं हम लोग, मराठी मध्ये अपन त्याला मी बोलतो। मराठी में क्या कहते हैं उसको, मी। उसको कैसे प्रोनाउंस करना है या रीड करना है, ये MEE इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें दूसरी मात्रा आती है। तो ये मात्रा वगैरह आपको अगले लेक्चर में वर्षा मैडम पढ़ा देंगी। ओके, तो सिर्फ आपको आज कैसे पढ़ना है, किसको क्या बोला जाता है, ये 2-4 वर्ड ही सीखने हैं और उनको थोड़ा यूज करना है। ओके, तो आई मतलब मी। अभी सेकेंड वर्ड मैंने लिया है यहाँ पे माय। तो माय में देखिए मैंने कितने सारे वर्ड्स लिख दिए मराठी में, माझा, माझी, माझे, माझा। ओके, किसी चीज के बारे में, दिस इज माय पेन, ऐसा अगर आपको बोलना है तो हा माझा पेन आहे। ओके, तो वो हो गया आपका। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। माय इज माझा, माझी, माझे, माझा। ओके, कोई भी चीज के बारे में अगर आपको बोलना है तो आपको उसको आप माझा, माझी, माझे या माझा ऐसे करके बोल सकते हैं। इसके सेंटेंसेस जब देखेंगे हम लोग डीप में तो आपको उनका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। लेकिन माय के इतने सारे वर्ड्स होते हैं मराठी में या मीनिंग होते हैं, ये आपको सिर्फ मुझे बताना था, इसलिए मैंने सभी डाल दिए हैं। इसके बारे में आज नहीं पढ़ रहे। अभी मी के बारे में सर ने आपको बोला था, मी म्हणजे मला, मला। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गिव वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, मला पानी दे। ओके, तो ये मला है। सर ने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया कि हम लोग जब वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव, तो उसमें भी बाय मी का अलग मीनिंग होता है और मी का अलग मीनिंग होता है। तो वैसे यहाँ पे भी आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। आज सिर्फ एक ही मीनिंग लेंगे इसका। एम और इज इसलिए लिखा है यहाँ पे, एम और इज का मीनिंग होता है आहे। जैसे हिंदी में हम लोग है बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं आहे। नेम, नेम आपका नाम जो होता है उसको मराठी में नाव बोला जाता है। देखिए कैसे पढ़ना है, NAAV, नाव। ओके, स्टूडेंट, स्टूडेंट
मराठी में उसको हम लोग विद्यार्थी बोलते हैं। मराठीत आपण काय बोलतो? विद्यार्थी। और कैसे पढ़ना है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो I is called me, my means माझा, माझी, माझे, माझ्या, me means मला, am and is means आहे, name नाव, एंड स्टूडेंट इज विद्यार्थी। इतने ही वर्ड्स क्यों दिए हैं? क्योंकि नीचे मैंने एक 2 सेंटेंस लिखे हैं। आज से आपको मराठी में आपका नाम बताना है तो आपको ये सेंटेंस बोलना है। जैसे हम लोग बोलते हैं माय नेम इज, सपोज मैं अभी अपने बारे में ही बोलती हूँ, माय नेम इज वैशाली। सो हाउ आई कैन से इन मराठी, माझे नाव वैशाली आहे। तो उसको आपको यहाँ पे लिखा है, देखिए जो ग्रीन में लिखा है मैंने, ऐसे पढ़ना है आपको मराठी, माझे नाव वैशाली आहे। ओके, देन यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को मैंने अभी ऊपर ही आपको बता दिया कि स्टूडेंट को मराठी में विद्यार्थी बोला जाता है। काय बोलतात? विद्यार्थी। आई एम स्टूडेंट, मी विद्यार्थी आहे। तो उसको ऐसे पढ़ना है आपको। मी ग्रीन में जो लिखा है देखिए, ताकि आप पढ़ना इजीली सीख जाए, क्योंकि ये विद्यार्थी जो है वो बहुत ही हार्ड वर्ड है आपके अभी जो आप बेसिक नॉलेज ले रहे हैं उसके हिसाब से। मी विद्यार्थी आहे। ओके, तो ये 2 सेंटेंसेस है। आप अभी मराठी के विद्यार्थी हो, मराठी लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने यही 2 सेंटेंसेस डाले हैं। आपको आज ये लिखना नहीं, लेकिन याद करना है, बोलना है एक दूसरे के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि आप जैसे अदर लैंग्वेजेस जब आप सीखते हो तो आप प्रैक्टिस वैसे ही करते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही मराठी भी जब आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो जो आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे उसको प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये 2 सेंटेंसेस है, माझे नाव, आप आपका नाम लिखना है बीच में, और लास्ट में बोलना है आहे। माझे नाव वैशाली आहे, माझे नाव संतोष आहे, ऐसे। ओके, देन ओके, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। लेकिन मैंने कुछ प्रिपेयर किया था आपके लिए, तो आई विल कंप्लीट दैट, विल टेक 2 to Vaishali 3 madam, minutes। यस सर। we will see whether all are okay with this, then we can continue Yes, with the yes, discussion. Okay, please sure, check. sure, sure. See, I'll take 5 minutes more. If you all are okay with that, please write okay. Yeah. Can I take 5 minutes more? Yeah, thank you so much. I'll continue. ये जो चार्ट है मैं आपको आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगी, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा इजी जाए। ये है आपका डेली यूज में कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके लिए मैंने मराठी में क्या बोला जाता है वो लिखा है। जैसे वाटर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वाटर को मराठी में बोला जाता है पानी। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे वर्षा मैडम ने आपको अपनी ण सिखाया और उन्होंने बताया भी कि ण से कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता, एंड होता है। ओके, वर्ड के आखिरी में लिखा जाता है। तो पानी, तो यहाँ पे हाउ टू रीड में मैंने बड़ा ण है इसीलिए कैपिटल एन लिखा है, ताकि आपको थोड़ा वो समझ में आए कि पानी, पानी बोला जाता है वाटर। टी जो है आपकी, टीला आपण चहा म्हणतो, ठीक है। टी, टी को हम लोग चाय, मतलब इसको मराठी में चहा बोला जाता है। कैसे रीड करना है? CHAHA, चहा। कॉफी को हिंदी में भी आप कॉफी बोलते हो, मराठी में भी कॉफी ही बोला जाता है। ओके, उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। मिल्क, मिल्क इज कॉल्ड एज दूध। हिंदी में दूध बोलते हो, मराठी में भी दूध ही बोला जाता है, DOODH, दूध। राइस, अभी सर ने जैसे बोला कि रॉ है राइस, तो उसको चावल बोलते हो आप, मराठी में तांदूळ बोला जाता है, तांदूळ बोला जाता है। लेकिन वो अगर पका हुआ है तो उसको बोला जाता है भात। ओके, कैसे पढ़ेंगे? BHAT, भात। देन दाल, इंग्लिश में, मराठी में उसको
डालो बोला जाता है। तो ड और ल और ड़ का जो आपका प्रॉब्लम था, तो ये ड़ यहाँ पे ऐसे यूज होता है। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एल लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि ये बड़ा ड़ मतलब ड़ लिखा हुआ है, ल नहीं है। डालो ड़ बोला जाता है। हिंदी में आप दाल बोलते हो। चपाती को मराठी में चपाती भी बोलते हैं, नाहीतर पोळी बोललं जातं। ओके। वेजिटेबल इज भाजी, BHAJI, भाजी। फ्रूट, जैसे मैडम अभी आपको फ से क्या है, फल पढ़ा रही थी, तो ये है फल, फ्रूट को बोला जाता है फल। यहाँ पे भी ळ लिखा है, देखिए हिंदी में आप ल लिखते हो फल, मराठी में फळ, मराठीत आपण फळ बोलतो। ओके। प्लीज म्हणजे कृपया, हिंदी में भी आप कृपया बोलते हैं प्लीज के लिए, मराठी मध्ये आपण कृपया म्हणतो। टू ड्रिंक मीन्स पीने, पानी पीना, चाय पीना, तो उसको मराठी में बोलते हैं पीने। ओके। टू ईट मीन्स खाने, दैट इज कोई भी चीज खानी है आपको, तो वो जो एक्शन है ईटिंग का, उसको मराठी में बोला जाता है खाने। टू गिव मीन्स देने, मतलब कुछ देना है, तो टू गिव दैट इज देने। यहाँ पे भी देखिए पीने, खाने, देने, सबके एंड में ण आया है। ओके। ण बाणाचा जे मॅडम बोलल्या होत्या तुम्हाला, जो मैडम ने बताया था ण, वो ण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनका यूज करके आई मेड सम सेंटेंसेस जो आपको सुनने हैं और उसको इस्तेमाल करना है इस पूरे वीक में। जैसे प्लीज गिव मी वाटर, तो प्लीज गिव मी वाटर को हम लोग मराठी में बोलेंगे कृपया मला पानी दे। लेकिन इनफॉर्मल वे में आप जनरली प्लीज यूज नहीं करते हो, तो आप ऐसे ही घर में किसी से पानी मांग रहे हो तो मला पानी दे इतना भी बोल सकते हो। ठीक है। तो कृपया बोलने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्लीज मतलब कृपया ऐसे यूज होता है। ये बताने के लिए मैंने सेंटेंस में कृपया मला पानी दे ऐसे लिखा हुआ है। ये ग्रीन में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे पढ़ना है। आई ड्रिंक टी, मी चाह पीतो। ओके। अभी हम लोग धीरे धीरे, जैसे आपके टेंस होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही मराठी में उनको काल बोला जाता है, वो भी पढ़ेंगे। तब टू ड्रिंक का ड्रिंक हुआ, पीने का पीतो हुआ, खाने का खातो हुआ, ये हम लोग वो सीखते जाएंगे। आई ड्रिंक टी म्हणजे मी चहा पितो। आई ड्रिंक मिल्क, मी दूध पितो। आई ड्रिंक कॉफी, मी कॉफी पितो। पितो कौन बोलेगा, लड़के, मेल। ओके। एंड फीमेल विल से मी चहा पीते। पितो इज फॉर मेल, पीते इज फॉर फीमेल। ये मुझे लिखना चाहिए था, माय मिस्टेक इट इज। तो मैं आपको जब व्हाट्सएप पे भेज दूंगी तो वो डिटेल के साथ भेज दूंगी। देन आई ईट राईस, मैंने खाण्यासाठी मी सांगितलं होतं तुम्हाला, खाने के लिए बोला था। मी भात खातो। ओके। आई ईट चिकन, मी चिकन खातो। आई ईट व्हेजिटेबल्स, मी भाजी खातो। एनीथिंग यू कैन पुट देयर। प्लीज गिव मी दाल, ठीक है, कृपया मला डाल दे। अभी आप खाने के लिए बैठे हो, आप दाल मांग रहे हो, तो आप मराठी में बोल सकते हो मला डाळ दे, मला भाजी दे, मला भात दे। ओके। तो ये ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो आज के आपके 4 सेंटेंसेस ये हुए। प्लीज गिव मी वाटर के लिए कृपया मला पानी दे। मी चाह पीतो, यहाँ पे आप चीजें बदल बदल के बोल सकते हैं। मी भात खातो, कृपया मला डाळ दे। अपने नाम कैसे बोलना है, माझे नाव वैशाली आहे। मी विद्यार्थी आहे म्हणजे काय, आई एम अ स्टूडेंट। ओके। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ और वर्ड्स के साथ शुरू करेंगे, या शुरू किया है आज से, तो आपको आपकी वोकैबुलरी जैसे सर ने बताया है वैसे बढ़ानी है, और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। आप वो सेंटेंसेस ग्रुप पे डाल सकते हो चेक करने के लिए, अगर कुछ डाउट्स है तो। ओके। तो हम लोग वो भी आपको करके देंगे, उसका करेक्शन भी करके दे देंगे। तो आज के लिए
I'll stop here only. I have many things जो आपको धीरे धीरे हम लोग पढ़ाएंगे. So thank you so much everyone. धन्यवाद. आपण आज इथेच थांबूया. पुन्हा पुढच्या क्लासमध्ये भेटूयात. Now you all can leave the class. Good night everyone. आभारी आहे सर. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for kind and patient listening. You can send your all doubts on WhatsApp. Good night. Bye bye. Thank you so much. Bye. Bye, ma'am. Please don't switch on your mic. Nobody switch on your mic, please.